حضرت سید وارث علی شاہ رحمتہ علیہ۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمتہ علیہ ایک مشہور صوفی بزرگ اور عالم دین تھے، جنہیں مخدوم الاسفاق اور سرتاج الفقراء جیسے القابات سے نوازا گیا۔ آپ کا تعلق ایک روحانی سلسلے سے تھا جو براہ راست رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی نسل سے جڑا ہوا ہے۔ ابتدائی زندگی اور ولادت۔ حضرت سید وارث علی شاہ کی ولادت 1 رمضان المبارک 1238 ہجری کو ہندوستان کے علاقے دیوا شریف میں ہوئی۔ دیوا شریف بارہ بنکی سے تقریباً 13 کلومیٹر اور لکھنؤ سے 28 کلومیٹر دور واقع ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت متنازع ہے، مگر آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوئی۔ سلسلہ نسب۔ حضرت سید وارث علی شاہ کا نسب مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جو کہ نواسہ رسول اور امام علی کے فرزند ہیں۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، سید قاسم حمزہ رحمتہ اللہ علیہ، سید علی رضا رحمتہ اللہ علیہ، سید محمد مہدی رحمتہ اللہ علیہ، سید محمد جعفر رحمتہ اللہ علیہ، سید ابو محمد رحمتہ اللہ علیہ، سید عسکری رحمتہ اللہ علیہ، سید ابو القاسم رحمتہ اللہ علیہ، سید محروق رحمتہ اللہ علیہ، سید اشرف ابی طالب رحمتہ اللہ علیہ، سید عزیز الدین رحمتہ اللہ علیہ، سید علا الدین رحمتہ اللہ علیہ، سید عبد الاحد رحمتہ اللہ علیہ، سید عبد الواحد رحمتہ اللہ علیہ، سید عمر شاہ رحمتہ اللہ علیہ، سید زین العابدین رحمتہ اللہ علیہ، سید عمر نور رحمتہ اللہ علیہ، سید عبد الواحد رحمتہ اللہ علیہ، میر سید احمد رحمتہ اللہ علیہ، سید کرم اللہ رحمتہ اللہ علیہ، سید سلامت علی رحمتہ اللہ علیہ، حکیم سید قربان علی رحمتہ اللہ علیہ، الحاج حافظ سید وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ۔ وفات اور عرس۔ حضرت سید وارث علی شاہ کا وصال 6 اپریل 1905 کو ہوا۔ آپ کا مزار دیوا شریف لکھنؤ میں واقع ہے، جو ہزاروں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے۔ آپ کا سالانہ عرس کارتک کے مہینے میں 1 اکتوبر سے 15 نومبر کے دوران منایا جاتا ہے۔ یہ عرس محبت، عقیدت اور اتحاد کا مظہر ہوتا ہے، جہاں ہزاروں لوگ جمع ہو کر حضرت کی تعلیمات اور ارشادات کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت سید وارث علی شاہ کا فیض آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق ایک علمی اور معزز سید گھرانے سے تھا، جو نیشاپور، ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے پردادا سید اشرف ابی طالب رحمتہ اللہ علیہ اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور بارہ بنکی کے ایک علاقے کنٹر کے قریب رسول پور میں سکونت اختیار کی۔ پیدائش کا مقام دیوا شریف۔ حضرت وارث علی شاہ کی پیدائش دیوا شریف میں ہوئی۔ یہ جگہ اپنی روحانی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے اور یہاں بہت سے علماء دین اور دانشور پیدا ہوئے ہیں۔ دیوا شریف کو ہمیشہ سے ہی علم اور دانش کا مرکز سمجھا گیا ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہے کہ حضرت وارث علی شاہ جیسے عظیم بزرگ یہاں پیدا ہوئے۔ پرورش۔ حضرت وارث علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی پرورش بہت خاص انداز میں ہوئی۔ اپنے 2 سال کی عمر میں اپنے والد اور 3 سال کی عمر میں اپنی والدہ کا سایہ کھو دیا۔ اس کے بعد آپ کی دادی محترمہ جناب حیات النساء صاحبہ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ آپ دودھ پیتے وقت صبر سے کام لیتے تھے اور چند گھونٹ سے ہی آپ کی پیاس بجھ جاتی تھی۔
इससे आपके अंदर की सब्र और कनात की झलक नजर आती थी। बचपन की खासियतें। देवा शरीफ की ख्वातीन आपके आला किरदार से बहुत मुतासिर थीं। दीगर बच्चों की तरह आपका बिस्तर हमेशा साफ रहता था और आप बहुत कम रोते थे। जब कभी जरूरत होती तो आप मखसूस इशारे करते और नर्स फौरन आपकी मदद के लिए आ जाती। रात के वक्त आप चांद और सितारों को गौर से देखते, जैसे खालिक की सनाई को सराह रहे हों। आप बहुत कम सोते थे और हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ जागते थे। लोगों की अकीदत। देवा शरीफ के बुजुर्ग आपके इस मुनफरिद और पुरसुकून रवैये को देखकर आपकी इज्जत करने लगे और आपको खास मकाम देने लगे। जब आप 5 साल के हुए तो आपकी दादी ने आपके लिए एक काबिल उस्ताद मुकर्रर किया ताकि आपकी इब्तिदाई तालीम का आगाज हो सके। हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की ये इब्तिदाई जिंदगी आपकी बुलंद शख्सियत और आने वाले अजीम रूहानी मकाम की अक्कास थी। हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की शख्सियत और इब्तिदाई जिंदगी। हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि के खेल कूद और तफरी का मकसद इलाही हक, अजमत, सखावत और मेहरबानी की खूबियां जाहिर करना था। आप खेल के जरिए भी दुनियावी जिंदगी से बेजारी और महब्बत इलाही का पैगाम देते थे। आपका पसंदीदा मशगला गरीबों में कपड़े और दीगर जरूरी चीजें बांटना था। यहाँ तक कि आप घर के कीमती बर्तन भी बांट देते थे। ये सब इस बात की अलामत था कि आप दुनियावी जिंदगी से दूर और बेनियाज थे। हजरत वारिस अली शाह ने अपने विरासती माल और दौलत को अपनी जात पर खर्च करने की बजाय गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया। ये सखावत और दुनिया से बेरग़बत आपके किरदार का बुनियादी हिस्सा था। तालीम और तरबियत। अपने कुरान शरीफ अपने चचा हजरत अमीर अली रहमतुल्लाह अलैहि से सीखा। घर वापस आने के बाद आप किताब खोलकर सबक नहीं दोहराते बल्कि कुदरत के दामन में खामोशी और तन्हाई में मुराकबा करते। अल्लाह के अता करदा ज़हन और हाफ़ज़े की बदौलत अपने 2 साल के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया और हाफिज़ कुरान बन गए। दीनी तालीम के साथ साथ आपको मौलवी इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने दुनियावी तालीम भी दी। ये काबिल एहतराम उस्ताद हजरत वारिस अली शाह को इज्जत व एहतराम के साथ पढ़ाते क्योंकि वो आपकी रूहानी शान को महसूस कर चुके थे। आपके असातिज़ा कहते थे कि आपके पास कुदरती तौर पर ऐसा इल्म था जिसे किसी उस्ताद के बगैर भी सीख लिया जाता था और आपको दुनियावी तालीम की ज़रूरत नहीं थी। आपके लिए जो भी तालीम दी जाती आप कभी नहीं भूलते थे। 8 साल की उम्र में आप अपनी दादी के साया से भी महरूम हो गए और उसके बाद आपके बहनोई हजरत हाजी सैयद खादिम अली शाह साहिब ने लखनऊ में आपकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी संभाली। इल्मी महारत और अरबी और फारसी में दस्तरस। हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि को अदब और कुरानी इल्म में महारत हासिल थी। एक मर्तबा जब आप मरूफ अदीब और फ़लसफ़ी मौलवी सैयद शर्फ अल-दीन रहमतुल्लाह अलैहि के मेहमान थे तो उन्होंने आपके सामने अरबी में एक तवील क़सीदा पढ़ा जिसमें कई मुश्किल अल्फाज और तरकीबें थीं। हजरत वारिस अली शाह ने इसे बगैर किसी दिक्कत के रवानी से पढ़ा और मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी की जिससे आपकी अरबी ज़बान पर दस्तरस का अंदाज़ा होता है। आपकी याददाश्त बहुत मजबूत थी। जो कुछ आपको बचपन में सिखाया गया इसे आप बुढ़ापे में भी याद रखते थे। आप अरब और फारसी ज़बान में रवानी से बात कर लेते थे। हजरत वारिस अली शाह जैसे लोगों को दुनियावी इल्म की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वो हर किस्म के सवालात का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और उलूम व फ़नून के माहिर समझे जाते हैं। ये सब बातें साबित करती हैं कि हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि एक अजीम आलम, सूफ़ी और खुदा की मोहब्बत में सरशार शख्सियत थे। हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का सफ़र हज और पर्दा। हज का पहला सफ़र 1838 में हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने हज के इरादे से मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का फ़ैसला किया। आपके मुरीदैन ने दरख्वास्त की कि आपके साथ कोई साथी हो, मगर अपने दुनियावी इंतज़ामात को रद्द करते हुए अकेले पैदल सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में अपने ऊनो, शकोआबाद, फिरोजाबाद, आगरा, जयपुर, अजमेर, नागौर जैसे शहरों से गुजरते हुए बम्बे का सफ़र तय किया। बम्बे से जहाज़ के जरिए जद्दा पहुँचे और वहाँ से मक्का मुकर्रमा की जानिब पैदल रवाना हुए।
29 शाबान की रात को अपने मक्का मुकर्रमा में कदम रखा और कबा शरीफ की जियारत की। आपको हक़ीक़तन कबा का वो दीदार नसीब हुआ जिसकी आपका दिल मुद्दतों से ख्वाहिश कर रहा था। हज और दीगर ममालिक के सफ़र। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने बाद में मिस्र, फ़लस्तीन और अदन का भी सफ़र किया और वहां से दोबारा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मर्तबा हज किया और रूहानी रहनुमाओं के मज़ारात की ज़ियारत भी की। 1853 में हज के सफ़र के बाद अब दोबारा दीवो शरीफ वापस पहुंचे। अपने अपनी ज़िंदगी के 14 साल मुकम्मल तौर पर खाना कबा के हज और ज़ियारत में गुजारे और साता बाज़ रवायत के मुताबिक 11 मर्तबा हज का शर्फ हासिल किया। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि के लिए हज सिर्फ रस्म नहीं बल्कि महब इलाही की मुकम्मल पाकीज़गी और खुलूस से सरशार इबादत थी। हज़रत वारिस अली शाह का विसाल। 6 अप्रैल 1905 बरोज़ जुमा हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। जब आपके आखिरी लम्हात करीब आए तो हकीम मिर्ज़ा यकूब बेग ने आपकी नब्ज़ देखी और वक्त करीब होने की खबर सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। आपकी उम्र 86 या 88 साल थी और आपकी रूह अपने महबूब हकीकी से जा मिली। दीवो शरीफ का उर्स। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत हाजी सैयद कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स करवा चौथे के बाद मुकर्रर फरमाया था। हर साल दशहरे के बाद कार्तिक मेले में उर्स का इनेकाद किया जाता है। दीवो शरीफ में ये उर्स हजारों ज़ायरीन के लिए एक मुकद्दस मौका होता है जहां लोग हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि को खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि का सफ़न ज़िंदगी लोगों के लिए मोहब्बत, खुलूस और खुदा की राह में फना होने का अजीम दर्स है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की पीर रूहानी रहनुमा के बारे में अहम हिदायत। हज़रत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तालीमात में पीर रूहानी रहनुमा के किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में वाज़ेह हिदायत दे। उनकी तालीमात की बुनियाद सादगी, खुदी की नफ़ी और खुदा की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारने पर थी। अपने पीर के बारे में जो कुछ फरमाया वो मुंदरजा ज़ैल लिकात पर मुश्तमिल है। दुनियावी दौलत से परहेज। हज़रत वारिस अली शाह ने फरमाया कि पीर का काम खुदा की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना है और वो दुनियावी दौलत का जमा करना जायज़ नहीं समझते। पीर वही होता है जो कुछ भी अपने पास न रखे, इसका कोई असासा ना हो और वो सिर्फ खुदा पर तवक्कल करे। अगर कोई शख्स अपने पेशे को रोज़ी का ज़रिया बनाता है तो वो दरअसल फ़कीर नहीं होता। आज़ादी और खुदी। अपने फरमाया कि पीर का अज़मत में यही है कि वो आज़ाद, खुद मुख्तार और बेगरज हो, जिसे किसी किस्म के दुख, परेशानियां, आराम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से होता है और अगर वो परेशानी में होता है तो इसका शको सिर्फ खुदा से करना चाहिए। पीर वो शख्स होता है जो सिर्फ खुदा की मोहब्बत में खुद को फना कर देता है। खुद को दुनिया से दूर रखना। हज़रत वारिस अली शाह ने कहा कि पीर का मकसद दुनिया से अलहदा होकर अपने दिल और दिमाग को सिर्फ खुदा की मोहब्बत में डुबो देना है। वो किसी दोस्त के लिए दुआ नहीं करता और न ही दुश्मन पर लानत करता है। पीर को कभी तावीज़ धागे बनाने का अमल नहीं करना चाहिए। अपने शागिर्दों को अहम हिदायत। हज़रत वारिस अली शाह ने अपने मुरीदों को मुख्तलिफ हिदायत दी, जैसे मुस्तकीम शाह को अपनी आंखें बंद रखने की हिदायत दी, हाफिज गुलाब शाह साहिब को रात दिन जागने की हिदायत दी, अब्दुल राज़िक शाह साहिब को खामोश रहने की हिदायत दी, कदर बख्श शाह साहिब को सब्जियां, गाय का गोश्त या परिंदे न खाने की हिदायत दी। मुर्दा दिलों के लिए जिंदगी के उसूल। हज़रत वारिस अली शाह ने फरमाया कि फ़कीर वो है जिसके पास इस दुनिया आखिरत में कोई सरमाया ना हो। पीर का रवैया और उसकी आदाब बहुत अहम हैं और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है वो कामयाब होता है, जबकि जो इंसानों पर भरोसा करता है वो नुकसान उठाता है। नफरत और बुग़्ज़ से बचना। हज़रत वारिस अली शाह ने फरमाया कि हसद एक गुनाह है जो इंसान के ईमान को ख़राब करता है। इसके अलावा किसी दूसरे के मजहब की तौहीन करना भी ममनू है। वदा शिकनी और लालच। आपने कहा कि वदा शिकनी गुनाह है और लालच इंसान को जिल्लत की तरफ ले जाता है।
खुद पसंदी और अहद की तकमील। हजरत वारिस अली शाह ने फरमाया कि तकब्बुर और खुद पसंदी इंसान को अपने पीर रूहानी रहनुमा से दूर कर देती है। उनका कहना था कि इनफरादियत को दोस्त समझना चाहिए और शोहरत से बचना चाहिए। इंसान की ख्वाहिशात उसे अल्लाह से दूर कर देती हैं। नतीजा, हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की ये तालीमात हमें सिखाती हैं कि रूहानियत की हकीकत सिर्फ दुनियावी माल और दौलत से परहेज और खुदा की रजा की खातिर जिंदगी गुजारने में है। एक पीर की जिंदगी में सादगी, बेगर्जी और खुदा पर तवक्कल शामिल होना चाहिए और उसका अमल हमेशा अपने रूहानी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। नमाज इबादत के बारे में सरकार वारिस पाक की हिदायत। नमाज में पाबंदी। सरकार वारिस पाक ने नमाज में पाबंदी रखने की अहमियत पर जोर दिया। चाहे किसी वजह से ताखीर हो, फिर भी नमाज को अलामतों के जरिए अदा करना चाहिए। तवाज़ो और तौबा। आपने फरमाया कि नमाज में तवाज़ो की जरूरत है और ये अल्लाह के बंदे की अलामत है। बाकायदगी से नमाज पढ़ना अल्लाह की रहमत का सबब बनेगा। नमाज का तर्क करना। जो शख्स नमाज को तर्क करेगा उसे मुर्शिद का मुरीद नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नमाज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। गौर फिक्र की जरूरत। सरकार वारिस पाक ने फरमाया कि नमाज को दिल की नियत और मुकम्मल ध्यान के साथ अदा करना जरूरी है। नमाज में अल्लाह का खौफ और तवाज़ो बुनियादी अहमियत रखती है। नमाज रूह की ग़िज़ा है। नमाज इंसान की रूह को ग़िज़ा फराहम करती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। ईमान और समाजी आदाब के बारे में सरकार वारिस पाक की हिदायत। अल्लाह का वाहिद होना। सरकार वारिस पाक ने अल्लाह की वाहिदियत को ईमान का बुनियादी उसूल समझाया। सच्चा आरिफ न सिर्फ अल्लाह की वाहिदियत का इकरार करता है, बल्कि हर शय में अल्लाह की तजल्ली देखता है। वफादारी और ईमान। अपने फरमाया कि एक शख्स को सिर्फ एक मुर्शिद के साथ वफादारी का अहद करना चाहिए। जैसे एक औरत को दो मर्दों से शादी की इजाजत नहीं, इसी तरह एक मुरीद को दो शेखों के साथ वफादारी रखना नुकसानदेह। जमीन की तरफ नजर रखना। अपने फकीरों को आसमान की तरफ नजर करने से मना किया और जमीन पर नजर मरकूज करने की अहमियत बताई, जो तवाज़ो और खाकसारी की अलामत है। सरकार वारिस पाक के अहम अक़वाल। महब्बत और तौहीद। अल्लाह से महब्बत को सच्ची तौहीद के बराबर करार दिया और फरमाया कि महब्बत एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को आला सच्चाई तक पहुंचाता है। दुनियावी जिंदगी से महब्बत इंसान को वहशी बना देती है, जबकि अल्लाह से महब्बत इंसान को फरिश्ता बनाती है। ईमान बमुकाबला इस्लाम। सरकार वारिस पाक ने यह वाज़ेह किया कि सिर्फ इस्लाम के ज़ाहिरी अमाल काफ़ी नहीं, अगर दिल ईमान से खाली हो। सच्चा ईमान वो है जिसमें अल्लाह से महब्बत सबसे ज्यादा हो और इस महब्बत का असर इंसान के अमल में नजर आए। सादगी और कनात। आपने फरमाया कि इंसान को मादी चीजों की तलब नहीं करनी चाहिए, जो कुछ भी बगैर मांगे मिले इस पर राजी रहना चाहिए। महब्बत में भूल जाने की हालत। महब्बत में इंसान इतना महव हो जाता है कि वो दुनियावी उमूर को भूल जाता है, और ये भूलना एक मुस्बत हालत समझी जाती है जो अल्लाह से महब्बत के नतीजे में हासिल होती है। खिदमत और सखावत। आपने ऐसे लोगों की तारीफ की जो दूसरों की खिदमत बगैर किसी इवज के करते हैं और जिन्हें दुनिया से कुछ तवक्को नहीं होती। आपने फरमाया कि ये सिफात सच्चे ईमान वालों में होती हैं। मजीद हिदायत। सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना सब्र महब्बत का फल है, और सच्ची अजमत अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने में है, चाहे हालात कैसे भी हों। जिंदगी का मकसद। इंसान का हतमी मकसद अल्लाह से महब्बत है। महब्बत अल्लाह का रास्ता है जो रूहानी तकमील और सच्चाई की तरफ ले जाता है। अल्लाह की तख्लीक और तदबीर। अपने फरमाया कि अल्लाह हर शय का खालिक और राज़िक है, और उसकी कायनात में जो भी है वो इसकी मलकियत है। सरकार वारिस पाक की ये तालीमात रूहानियत, तवाज़ो, महब्बत, ईमान और अल्लाह की रज़ा की पैरवी करने की तरफ रहनुमाई करती है। उनकी हिदायत में ये सबक छुपा हुआ है कि इंसान का सच्चा रूहानी इर्तिका अल्लाह की रज़ा और महब्बत में है, और यही इंसान को सच्चाई के करीब ले जाता है।